Hello everyone, how are you? I hope all are you well. Today's topic is based on William Shakespeare sonnet, Sonnet 18 by William Shakespeare. William Shakespeare 1564 1660 1616. This sonnet is based on William Shakespeare's patron and friend named Earl of Southampton. Earl of Southampton. Earl of Southampton. Sonnet. What is sonnet? What is sonnet? Sonnet is a kind of poetry in which 14 lines contain. Sonnet means 14 lines. We have two kinds of sonnets, Italian or Shakespeare sonnet. In Shakespeare sonnet, we have different pattern compared to Italian sonnet or Petrarchan sonnet. Shakespeare wrote 154 sonnets, 154 sonnets लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने, और जिनका पैटर्न, द पैटर्न आर सेम. द पैटर्न इज, we say rhyme scheme of the pattern, and the rhyme scheme is all the sonnets are the same pattern, like AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. शेक्सपियर रॉट 154 सोनेट्स, 154 सोनेट्स, और उन सभी का जो पैटर्न है वो सेम है. द पैटर्न इज सेम of the all Shakespeare sonnet. This sonnet is based on Shakespeare patron and real friend of Earl of Southampton, as I have already told to you. Shakespeare compares Earl of Southampton's beauty with summer's day, and the first line of this sonnet is, shall I compare thee to a summer day. Shakespeare sonnet is divided into 3 quatrain and 1 couplet. 3 quatrain, 1 couplet. Quatrain means 4 lines and couplet means 2 lines. एक क्वार्टर में 4 लाइन्स होती हैं और एक कपलेट में 2 लाइन होती हैं. In sonnet 18 we have 3 quatrain. Quatrain, 4 lines, and this sonnet has the rhyme scheme of AB, AB, CD, CD, EF, EF and GG. GG. 4 lines, 4 lines, 4 lines and 2 lines. In total 14 lines.
The first quatrain is, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. The winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. We have some tough meaning, like summer's day. Summer's day means pleasant day. Lines 1 to 4. Summer's day means pleasant weather और सुहावना मौसम. इन इंग्लैंड में मई का महीना या गर्मी का मौसम इन कंपैरिजन इंडिया सुहावना होता है, प्लेजेंट होता है. इसलिए शेक्सपियर अपने फ्रेंड का जो कंपैरिजन है वो मई का महीना, गर्मी के महीने का जो मौसम होता है उससे कर रहा है. एंड द फर्स्ट लाइन इज, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. द पोएट सेज दैट इफ he should compare my friend to a summer's day or summer's weather, कि क्या मुझे अपने दोस्त की, अपने फ्रेंड की, अपने मित्र की तुलना गर्मी के मौसम से या गर्मी का जो मौसम होता है या उसमें जो सुहावनापन होता है क्या उससे करनी चाहिए. The next meaning is thee. Thee means you. As an object. As an object in Old English. Shall I compare thee to a summer's day? कि क्या मुझे मेरे दोस्त की जो तुलना है वो गर्मी के मौसम से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. Thou art more lovely and more temperate. Thou means you. As an subject, as a subject in Old English. We use thee as a subject in Old English. Thou art more lovely and more temperate. कि जो तुम्हारी आर्ट है, जो तुम्हारी कला है, जो तुम्हारा रहने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेम्परेट है. टेम्परेट मीन्स माइल्ड. टेम्परेट मीन्स माइल्ड और सेल्फ कंट्रोल. कि तुम अपने आप पर बहुत ही कंट्रोल कर सकते हो इन कंपैरिजन टू समर्स डे, गर्मी के मौसम की तुलना में. इसलिए मैं तुम्हारी जो तुलना कर रहा हूँ गर्मी के मौसम से वो सही नहीं है. यू आर ग्रेट देन समर्स डे, कि समर्स डे से भी तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हारी उससे तुलना नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता. रफ विंड्स do shake the darling birds of May. Rough winds do shake the darling birds of. The third line of the first quatrain is rough winds. Rough winds means wild weather or violent. कि जो गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती हैं वो रफ होती हैं, वो वायलेंट होती हैं, वो भयानक होती है. डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स. डार्लिंग मीन्स लवली. बर्ड्स ऑफ मे birds of May means small nose.
यानी कोंपले, कि जो गर्मी के महीने में जितने भी जो फूल खिलते हैं, उनकी जो बर्ड्स हैं, जो स्मॉल नोब्स हैं वो खिलती हैं, उनको जो रफ विंड्स चलती हैं, जो भयानक हवाएं चलती हैं, वो गिरा देती है उसको और उसको शेक कर देती है, उसको हिला देती हैं। इसलिए जो गर्मी का जो मौसम है वो तुमसे सही नहीं है, यानी मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी हैं इन कंपैरिजन टू समर्स डे, और गर्मी के मौसम की तुलना में। एंड द फोर्थ लाइन ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर इज द समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डे। लीज मीन्स specified time, lease means specified time, specified time, निश्चित समय। All summers lease hath all too short a date, and summers lease hath all too short a date. Hath means has. विलियम शेक्सपियर कहता है गर्मी का मौसम जो है वो स्पेसिफाइड होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। ऑल शॉर्ट टू अ डेट, शॉर्ट टू डेट मीन्स कि कुछ समय के लिए होता है और फिर वो चला जाता है। लेकिन जो मेरे मित्र की जो ब्यूटी है, जो उसकी सुंदरता है, जो उसकी चार्मिंगनेस है, वो हमेशा रहेगी, वो एटर्नल है, फॉरएवर है, हमेशा रहने वाली है। इसलिए मैं तुम्हारी जो तुलना है वो समर डे से नहीं कर सकता। दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर। एंड द सेकंड क्वार्टर लाइन 5 to 8, 5 to 8. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. We have some tough meanings. Please note it. Sometimes too hot the eye of heaven. Eye of heaven means sun, सूर्य। Eye of heaven means sun। कि कभी कभी समझ दे गर्मी के मौसम में सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, टू हॉट हो जाता है। And often is his gold complexion dimmed. Complexion means color। लेकिन but after some time, कुछ समय के बाद dimmed, डिम्ड मीन्स फेड हो जाता है। वो कई बार बादल आ जाते हैं, क्लाउडी हो जाता है, तो वो सूरज की जो रोशनी है वो भी ख़त्म हो जाती है समर डे में। लेकिन जो तुम्हारी जो चार्मिंगनेस है, जो मेरे मित्र की जो क्वालिटी है, जो उसके अंदर गुण हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ही इज़ एटर्नल, ही इज़ एन एटर्नल, ही इज़ फॉरएवर, ही विल नेवर बी फिनिश। वो कभी ख़त्म नहीं होगा। And often is his gold complexion dim, and every fair from fair sometimes decline, by chance or nature changing course untrimmed. Untrimmed means ugly, bad। कई बार क्या होता है कि and every fair from fair sometimes decline, कि जो भी संसार में चीज है वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, कुछ समय के लिए है,
बाद में उस वो फिनिश हो जाएगी। सम टाइम डिक्लाइंस, डिक्लाइंस मीन्स वो खत्म हो जाएगी। बाय चांस, चाहे वो एक्सीडेंट से, वेदर हैपन एक्सीडेंट और सम अदर कैलामिटी, या कुछ अदर कोई एक्सीडेंट से हो, या फिर कोई नेचर चेंजिंग कॉज अनट्रिम्ड, कि जो नेचर का जो साइकिल है, द साइकिल ऑफ नेचर ऑलवेज चेंज्ड, वो चेंज होता रहता है। अनट्रिम्ड, अनट्रिम्ड मीन्स कि अगली, जो आज चीज़ सुंदर है वो कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वो अगली हो जाएगी, वो बैड हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी जो क्वालिटी है, जो तुम्हारे गुण हैं, जो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी काम करने का जो तरीका है, जो तुम्हारे अंदर काइंडनेस है, जो दयालुता है, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा से रहेगी। दिस वॉज द सेकेंड क्वार्टरन ऑफ सोनेट 18 by William Shakespeare, and third quatrain is, but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fear thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest। थर्ड क्वार्टरन में विलियम शेक्सपियर कहता है, कंपैरिजन करता है अपने फ्रेंड की समर्स डे के साथ। लाइन्स 9 to 12 क्या कहता है इसमें शेक्सपियर? बट दाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड। एटर्नल मीन्स फॉर एवर, हमेशा के रहने के लिए। पोजेशन, ऑनरशिप, अधिकार होना किसी चीज पे। बट लेकिन कहता है जो तुम्हारी जो एटर्नल पोजेशन है, जो तुम्हारा जो हमेशा के लिए जो रहने वाली जो क्वालिटी है, वो कभी फेड नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। नोर लूज पोजेशन ऑफ दैट फियर thou owest। और जो तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ क्वालिटी, यू विल नेवर लूज योर क्वालिटी। एंड द थर्ड लाइन ऑफ द थर्ड क्वार्टरन बाय विलियम शेक्सपियर, नोर शैल डेथ ब्रैग द वॉन्डरस इन हिज शेड। ब्रैग मीन्स बोस्ट। And William Shakespeare says that no such death brag thou wonders in his death। Shade, shade means छाया, और ना ही जो डेथ है वो बोस्ट कर सकती है। डेथ कैन नेवर बोस्ट अपॉन हिमसेल्फ, अपने ऊपर ब्रैग नहीं कर सकती, डींग नहीं मार सकती। बिकॉज माई फ्रेंड इज एटर्नल, माई फ्रेंड इज फॉर एवर, माई फ्रेंड्स क्वालिटी इज फॉर एवर, ही कैन नेवर डाई, बिकॉज माई वर्स बिकम हिम एटर्नल। उसे एटर्नल बना देगी मेरी वर्स, मेरी जो कविताएं हैं। सो मेरी कविताओं के माध्यम से, थ्रू माई पोइम्स, मैं अपने कभी मित्र को मरने नहीं दूंगा। जैसे कि समर डे है, गर्मी के मौसम में हर चीज़ आती है, हर चीज़ जाती है। द साइकिल ऑफ नेचर इज़ ऑलवेज चेंज्ड, चेंज होता रहता है। एंड एवरीथिंग इज डिके, और कोई भी चीज़ है वो डिके होने वाली, वो नष्ट होने वाली। When in eternal lines to time thou growest। Eternal lines means the poetry of William Shakespeare। विलियम शेक्सपियर की जो पोइट्री है वो हमेशा रहेगी जब तक लोग उसे पढ़ते रहेंगे। So long as man can breathe, जब तक लोग सांस लेते रहेंगे, जब तक लोग, और eyes can see, जब तक आंखें देखती रहेंगी, तब तक उसकी कविताएं पढ़ी जाएंगी। और जब तक विलियम शेक्सपियर की कविताएं पढ़ी जाएंगी, तब तक उसका जो फ्रेंड है वो हमेशा
रहेगा, फॉरएवर रहेगा, एटर्नल रहेगा, अमर रहेगा। So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Last two lines of the sonnet 18 by William Shakespeare, lines 13 and 14, couplet। दो लाइन्स को हम कपलेट कहते हैं, जिसमें दो लाइन्स होते हैं उसे कपलेट कहते हैं, दोहा कहते हैं। जिसमें चार लाइन होते हैं उसे क्वार्ट्रेन कहते हैं, चौपाई कहते हैं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। कि जब तक इस संसार में लोग रहेंगे, जब तक वो देखते रहेंगे, जब तक वो सांस लेते रहेंगे, तब तक मेरी जो पोइट्री है वो हमेशा रहेगी। और जब तक मेरी पोइट्री रहेगी तब तक क्या है, मेरा जो फ्रेंड है वो अमर रहेगा। माई फ्रेंड इज ऑलवेज रिमेन, विल ऑलवेज रिमेन, माई फ्रेंड विल ऑलवेज रिमेन, हमेशा रहेगा। जब तक इस धरती पर जीवन है, so long as the lives on that earth and this gives life to thee। और जो मेरी कविताएं हैं वो मेरे दोस्त को जीवन देती रहेगी, उसे हमेशा से अमर रखेंगे। This was the sonnet 18 written by William Shakespeare. If you have any kind of queries, please comment and send your problems. I will try my best to remove your problems. Thank you very much for watching this video. Thank you very much.